with farmers, entrepreneurs, and then a few officials also who accompany you. I do hope, like you understand in English, little bit in English. Okay, so I'll just talk in English, maybe the one from your official, if it's a required translation, or maybe during the interaction, we can always interact. And yeah, along with me, she's Dr. Dalby. She's the Horticulture Development Officer. I'm the Assistant Director looking after this unit here. And this unit is actually under the Directorate of Food Processing. So as you come for the exposure visit to the Department of Agriculture and Farmers Welfare here in the Government of Meghalaya, we have separate directorates. Directorate of Horticulture is there, Directorate of Agriculture, Directorate of Research and Training. And before we actually ask your exposure visit, we'd just like to see how what type of machines and equipments that we are having in our factory. Rather, we would like to, like it's mandate not only for giving a training and all, rather we also handle some of the entrepreneurs, and then even in the what we call it, the internship students from different universities. So this unit, it has a very small factory with a capacity of 75 metric ton only per annum, and we have other facilities or amenities which we will be showing you when we go to the factory. So the objective of this office actually has its mandate that we allow those students from different universities, from different colleges who are having a course in the food processing and food technology or food engineering, then they come here for their practical works or for their internship and for their projects too. And then we also help those other organized you also come and visit us. Like in the morning or so, when nursing school from from another district, we are coming just now. We are finished. So like. Ay, hindi po. Ay, laga po. Pali mo na ito ba yan? Yan mga bibig eh. Cute. Ito, ano yun? Ano ba? Pek rakibo. Pek rakibi koyese pek. Sab bana pek. मेन प्रोसेसिंग हो आप लोग यू कंफर्टेबल इन इंग्लिश और हिंदी हिंदी इसको बोलते हैं फ्रूट क्रशर तो इसको हम लोग पाइनएप्पल ये सब क्रश करने के लिए बेसिकली वो पल्प निकालने के लिए यूज़ करते हैं। इसको जूस निकालने के लिए नहीं है, पल्प निकालने के लिए मशीन होता है। तो इसका काम जो है वो मिल जैसा ना, मिलिंग जैसा वो मिल करने में यूज़ करते हैं। जैसे कि हम लोग अभी पाइनएप्पल का यूज़ किया तो पाइनएप्पल का वो जैम बनाने के लिए यूज़ करते हैं। इसको पहले क्रश करना होता है ना, तो पहले क्रश करके उसका जो पल्प निकलेगा उसको हम लोग पाइनएप्पल जैम बनाने के लिए यूज़ करते हैं। ऐसे दूसरा फ्रूट्स आप भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फ्रूट जैसे कि जिसका वो सीड बहुत हार्ड है ना, बहुत हार्ड वाला वो मोटा वाला सीड, जैसे कि आपका हो गया मैंगो, ये सब यूज़ नहीं कर सकता। इधर में क्रश होकर इधर में गिर जाता है ना, ये ऊपर है और इसका ये आउटलेट्स ना इधर में गिर जाएगा, तो वो सीड्स भी साथ साथ में गिर जाएगा, इसलिए नहीं होगा।
तो जिसका सीड्स वो नहीं है ना उसको यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप उसको कट करके पहले छोटा छोटा करके इसको डालना होगा बिना ड्राइंग मशीन, ओके, ड्राई करने के लिए जो यूज़ करते हैं। तो इसके अंदर में एक चैम्बर करके ट्रे होगा, हाँ? तो फिर ट्रे भी जो हम लोग बेकिंग में जो यूज़ करते हैं वो थोड़ा अलग है ना। तो अभी ये तो ड्राइंग के लिए यूज़ करते हैं, ये तो फ्रूट्स और वेजिटेबल को ड्राइंग के लिए यूज़ करते हैं ना। तो इसमें छोटा छोटा कॉर्पोरेशन सब होता है, जैसा होगा ना बॉल जैसा होता है। तो उसमें जैसे कि आप जब ड्राई करेगा ना तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर ना, एयर हवा सब में अच्छे से फैल जाएगा तो सूख जाएगा। अगर आप वो बेकिंग में जैसे यूज़ करता है ट्रे जैसा वाला यूज़ कर जिसमें होल नहीं है ना नीचे में, वो तक पे यूज़ करेगा तो हवा तो आना जाना नहीं होगा ना, एक ही तरफ से हो जाएगा, दूसरा तरफ ऐसा नहीं हो जाता। इसलिए ऐसा कर जब फ्रूट्स और वेजिटेबल और आप स्पाइसेस का भी कर सकता है, वो टाइप का आप यूज़ करेगा तो ऐसा टाइप का ड्राइंग यूज़ कर मशीन यूज़ करना है। और बेसिकली हम लोग जो जब फ्रूट्स और वेजिटेबल यूज़ करेगा ना उसमें हम लोग स्पाइस ये सब यूज़ नहीं करते हैं। हम लोग का फैक्ट्री है जो सिर्फ फ्रूट्स और वेजिटेबल को प्रोसेस करता है, या हमें स्पाइस का नहीं होता है, या हमें टी का आप लोग दूसरा जगह में देख के आए ना, तो मशरूम का भी तो हम लोग का सेंटर है अलग, तो सबके लिए अलग है। तो सबको मिक्स करके यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि स्पेशली आप लोग का स्पाइस जो मसाला होता है ना, वो सब मसाला को भी फ्रूट्स में एक साथ ही ड्राई करेगा तो उसका गन उसमें कंटामिनेट हो जाएगा ना। तो इसकी वजह से हम लोग सब चीज़ के लिए अलग अलग यूज़ करना होता है। चॉपिंग मशीन था ये, फिर यहाँ में कन्वेयर ये बेल्ट यहाँ होता है, फिर इसमें चॉपिंग वाला वो ब्लेड था। तो उसमें आप जब यहाँ में फ्रूट्स डालेगा ना तो धीरे धीरे आके चॉपिंग करते हैं। बेसिकली आप जब कमर्शियल प्रोडक्शन में काम करेगा तो आप हाथ से कितना चॉपिंग करते रहेगा ना, तो हम लोग पिकल मेकिंग ये सब के थे इस मशीन में चॉपिंग करते हैं छोटा छोटा करके। तो ये डाइस है, इसका साइज़ भी आप अपना हिसाब से आप वो कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, कितना बड़ा लंबा वो सब चाहिए ना, तो उसके हिसाब से आप उसको भी एडजस्ट कर सकते हैं। आप पूरा मशीन अभी खोल के वो लोग सर्विसिंग के लिए खोला है इसलिए अच्छे से नहीं देख पा रहे हैं। पल्पर और पल्पिंग मशीन, पल्पिंग मशीन बोलते हैं इसको। जो ये बेसिकली ये भी पल्प निकालने के लिए होता है, लेकिन अंदर में आप देखिएगा तो इसमें ड्रम जैसा वाला होता है, ये ना इसका ड्रम अभी खोल के हम लोग वॉश किया है, हाँ। तो इसको अंदर में फिटिंग करना होता है। तो ये तो पूरा वो है ना सीव, जो चाय पत्ता हम लोग वो सीव करते हैं तो वैसे टाइप का होता है ना। तो अंदर में यहाँ में आप फ्रूट्स डालेगा तो पका वाला फ्रूट्स तो इधर में डालेगा तो इधर अंदर में वो होके चले जाते हैं, उसका अंदर में सीज होके ये बाहर आप इधर चले जाते हैं वेस्ट ना। और जो आप वेजिटेबल आप पल्प करना चाहता है, जैसे बाकी बाद में इसको निकालने के बाद वो जैम ये सब बना सकता है ना उसी से। और किसी वो में फ्रूट्स में भी हम लोग यूज़ कर लेते हैं, सोयोग ये सब काम के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैम बनाने के लिए हो गया। कोई तो सिर्फ प्यूरी बना के भी उसको बेकरी में यूज़ करेगा, कोई केक बनाने के लिए यूज़ करेगा, ऐसा भी हो सकता है। तो ये तो पहले पल्प निकालने के लिए यूज़ कर सकते हैं ये मशीन, ये सेम ही है। ये 300 kg पर आवर ना, 300 kg पर आवर यूज़ कर सकते हैं, और ये 150 kg पर आवर कर सकते हैं। तो अपना अपना कैपेसिटी। लोग को राइस मिल होता है, ये भी इसी टाइप का ही मिल होता है। इसके अंदर भी वो स्क्रू टाइप का ना ऐसा उसको पूरा क्या स्क्रू करके ना पूरा प्रेस करके इधर से ये भी पल्प निकाल देते हैं। सो पल्प को हम लोग बेसिकली यहाँ में तो हम लोग पल्प को तो जैम बनाने के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि हम लोग प्रोडक्ट के हिसाब से होता है आप किसके लिए यूज़ करेगा ना। क्योंकि हम लोग का अभी प्रोडक्ट तो हो गया जैम, जेली, मार्मलेड ये सब है ना, तो जूस निकालने के लिए अलग मशीन है। तो इसकी वजह से हम लोग ये पल्प निकालने के लिए कर रहे हैं। ये भी सेम है, वो भी लगभग सेम ही है। और वो मशीन ये थोड़ा पुराना है, वो नया है। जो स्क्रू टाइप जूस एक्सट्रैक्टर बोलते हैं इस मशीन, ये बेसिकली जूस निकालने के लिए होता है, वो सब पल्प निकालने के लिए होता है ना उसको। तो ये प्रेस करके, ये भी आप लोग बाज़ार में जूस बार ये सब पे देखा है ना, वो भी प्रेस करके छोटा वाला ये कमर्शियल लेवल में आप जूस निकालने के लिए यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ में भी हम लोग जो जूस निकालना चाहते हैं, जो फ्रूट्स का, तो इसके लिए यूज़ करें। साइट्रस फ्रूट्स में आप लोग का हो गया जैसे कि लेमन, ऑरेंज, ये सब के यूज़ करें जूस निकालने के लिए। अब करम्बोला होता है स्टार फ्रूट ना, स्टार फ्रूट ये सब का जूस निकालने के लिए भी यूज़ करते हैं। तो ये भी सेम चीज़ है, ये भी आप ना
हाँ, ज़्यादा जिस जिस फ्रूट्स का बड़ा सीड होता है ना उसको यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इसका ये आउटलेट कम है ना, तो ये तो उसमें आप बड़ा वाला सीड जैसे कि मैंगो ये सबको इधर में डाल देते तो उसमें ही ब्लॉक हो जाएगा ना। इसलिए आपको देखना है कौन सा मशीन किस किस फ्रूट्स और वेजिटेबल के लिए सूटेबल होगा, उसको देखना होता है पहले। तो बेसिकली अगर हमको मैंगो को करना है तो ये हमें नहीं करेगा, अगर करना है तो भी उसको पूरा काट काट के ना पील को पहले निकाल के उसके बाद फिर उसका पल्प को छोटा छोटा करके काट के निकालना होता है। सो आपको पहले वो प्री ऐसा ना ऐसा इसको जूस निकालने से पहले प्री प्रिपरेटरी वो सब होना पड़ता है ना, छोटा छोटा काट के। इवन कारम्बोला ये सब कभी यूज़ करेगा तो डायरेक्ट फ्रूट्स को इधर में बाजार से लाके नहीं डालते, पहले ट्रिमिंग कटिंग सॉर्टिंग ये सब होना पड़ता है। कौन सा खराब है, कौन सा डिजीज़ हो गया ना, कौन सा कभी कभी चूहा ये सब भी खाता है, इसी नहीं आया अभी तो। ये मशीन को बोलते हैं हाइड्रोलिक जूस प्रेस। हाइड्रोलिक जूस प्रेस, तो आप तो ये हमें गियर होता है, इसको प्रेस होने से सब कुछ टूट के, और ये भी प्रेस होना पड़ता है। ये भी जूस प्रेस करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं कुछ कुछ फ्रूट्स के लिए ना, उसी से उसमें कुछ कुछ फ्रूट्स होता है तो इसमें भी हमें ला के हम लोग प्रेस करता है ताकि जूस ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाए ना। 10 केजी से होगा तो 10 केजी से जितना मिल सके उतना ही हम लोग कोशिश करते हैं। इसलिए हम लोग पहले जूस करने के बाद फिर इधर में ला के फिर एक बार और फिर प्रेस करते हैं। तो ये भी तो काफ़ी पुराना मशीन है, अभी तो नया वाला वो न्यूमेटिक प्रेस ये सब बहुत नया नया मशीन भी होती है वो सब। ये भी एक वो होता है, मतलब कढ़ाई जैसा, जो जैम बनाना हो गया, आपको कुछ बॉईल करना हो गया ना, तो ज़्यादा वो में मात्रा में आप जब बनाना है ना जैम ये सब, और सिरप भी बनाना है, पानी और शुगर का जो रेशियो में उसको बनाना है तो बना सकते हैं, क्योंकि ये सब वो सब बॉयलर से ऑपरेटेड है, ये बॉयलर से पूरा फिटिंग है ना, तो यहाँ से स्टीम आता है और फिर यहाँ में कुकिंग करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो बेसिकली हम लोग यहाँ में जैम ये सब बनाने के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ में दिस वन इज़ 300 kg, एक बार में आप कुकिंग कर सकते हैं। बट इन प्रैक्टिकल नो इसका कैपेसिटी है 300 बोलेगा आपको सेल करने का टाइम, लेकिन प्रैक्टिकल में तो आप 300 kg हमें डाल के नहीं बना सकते, क्योंकि वो पूरा बॉयल हो जाएगा, ऐसा ऊपर फ्लोट आ जाएगा तो गिर जाएगा ना उसमें, तो इधर तक डालेगा, तो इसीलिए प्रैक्टिकल में तो हम लोग मैक्सिमम 200 kg ऐसा बनाते हैं, क्योंकि आपको उसको कंटिन्यूस चर्न करना भी होता है। तो इसकी वजह से प्रैक्टिकल में जो स्पेसिफिकेशन लिखा है उसमें तो थोड़ा अंतर होता है। ये सब सेम ही है, आप रेगुलेट नॉब है नीचे में रेगुलेट कर सकते हैं, कितना प्रेशर चाहिए, कितना हीट चाहिए ना, कमाना है तो फिर उसको रिलीज़ करना होता है, बढ़ाना है तो उसको बंद करना होता है, ऐसा करके बना सकते हैं। इसमें बनाने से हम लोग लगभग 200 kg भी 40 ये मशीन ये बाकी सबसे अलग है। ये हो गया आपका पाइनेपल पीलर, क्योंकि हम लोग का यूनिट बहुत पुराना है ना, 1955 से, ऊपर से कुछ कुछ मशीन तो उस टाइप से इंस्टॉल किया है, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग फिर कुछ कुछ इंस्टॉल किया है, हम भी नया है। और हम लोग ऑटोमेटिक मशीन नहीं लगा सकते, क्योंकि ऑटोमेटिक का भी तो अपना वो होता है ना, पर डे का कैपेसिटी होता है, आप उसके हिसाब से यूज़ नहीं करेंगे तो आपका ही लॉस हो जाएगा ना। जैसे कि ऑटोमेटिक लाइन और पाइनएप्पल कैनिंग ये सब यूज़ करेगा तो सिर्फ उसके ही बनाना, दिन में कितना 1000 बनाना होता है, उतना ही सेल भी होना पड़ेगा। आप सिर्फ बनाएगा सेल नहीं हो पाएगा तो आपका लॉस हो जाएगा। इसलिए ये तो हम लोग का पूरा स्मॉल फैक्ट्री है, हम लोग का कैपेसिटी जितना हम लोग 75 बोलते हैं, लेकिन होता है पूरा साल में बनाने के लिए भी कलेक्ट करना, वो सब भी बहुत कम साइज़ भी है इसमें। ठीक है, सो 70 mm, फिर हो गया आपका 80 mm, 90 mm, 100 तो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि पाइनएप्पल इतना बड़ा ही नहीं होता है, फ्रूट साइज का ही इतना साइज़ नहीं होने से आपको फायदा, इसलिए हम लोग 100 का तो यूज़ ही नहीं कर पाता है घर में, मैक्सिमम हम लोग 70 to 80 वाला यूज़ कर लेते हैं इसमें। तो ये सिर्फ पील करने के लिए होता है, तो ये प्रेशर से ना पूरा पील होके फिर ये बीच का वाला जो कोर ना, पाइनएप्पल का जो बीच में तो हार्ड वाला होता है ना, वो कोर उसको भी रिमूव होते हैं, फिर इधर से होके आ जाते हैं, कलेक्ट इधर से कलेक्ट कर सकते हैं, पील और दोनों साथ में फिर सेग्रीगेट करना होता है उधर से। केचप, जैम और सेमी सॉलिड प्रोडक्ट्स को हम लोग पहले पैकिंग में यूज़ करते थे। ये पिस्टन फिलर्स ना, पिस्टन, तो आप जितना चाहिए 200 ग्राम्स ना, 100 ग्राम, तो अपने हिसाब से ये वो कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। तो 1 kg चाहिए हो गया, उसके हिसाब से वेइंग बैलेंस भी कई तरीका का होता है, ये तो बेसिकली इसमें लिखा जाता है ना कि
ये 300 kg तक ले सकता है। यूज ना बहुत कम अमाउंट में देना होता है, उसका भी अपना डोज होता है, एक्सरसाइज के हिसाब से अपना रूल्स गाइडलाइंस हो जाता है, इसको कितना में देना है वो सब आपको जानना होता है। जैसे कि स्क्वाश में हम लोग KMS डालेगा तो 350 ppm ना, तो 350 इतना होगा उसको भी कैलकुलेट करके देना होता है। ऐसा कि नहीं अपने हिसाब से प्रिजर्वेटिव ये सब कुछ डालेगा, ऐसा नहीं, सब रूल्स एंड रेगुलेशन FSSAI ने गाइडलाइंस में दिया हुआ है, उसके हिसाब से हम लोग भी यहाँ में जो भी सामान बना रहे हैं वैसे मिनिमल प्रोसेसिंग, मतलब जैसे कि अभी सीजन ना फ्रूट्स का भी अपना सीजन होता है ना, कुछ कुछ तो 2 दिन साल में कुछ जैसे कि जूस निकालना, फल निकालना, ये सब हम लोग जितना सकते हैं ये में हम लोग कभी कभी पानी में स्टोर करके रखते हैं, बट बेसिकली इसका काम है हम लोग कैनिंग एंड प्रोडक्शन में हम लोग का वो है। अभी कैनिंग हम लोग पाइनएप्पल का कैनिंग और अंदर में जो फिर इसका शेक करेगा